Hello students, welcome to our YouTube channel. This is lecture 6 in the series of computer science lectures for class 11th. And today's topics are device management, memory management, file management and types of operating system. Out of these four topics, device management, memory management and file management are also the functions of operating system. So in today's class, we will cover device management. In device management, we will understand what is the need and meaning of device management and what are the techniques we use to achieve the device management. We will cover the different techniques like buffering and spooling and try to understand their significance. We will cover memory management. In memory management, we will try to understand what is the need of memory management and what are the two major techniques which are used for memory management. We will cover file management. In file management, we will understand how an operating system manages the file using file allocation tables. We will also cover types of operating systems, where we will see the different types or classifications in which we can classify different operating systems. We will cover types like real-time operating systems, time-sharing operating systems, multitasking operating systems. All these things like this we will be covering in types of operating systems. So let's start with the first topic, that is device management. So before starting with device management, let me ask you, what is the meaning of management in simple terms? सीधे सरल साफ शब्दों में, एक लेमन भाषा में, घरेलू भाषा में मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है, ये हमें समझ में आना चाहिए समझने के लिए कि डिवाइस मैनेजमेंट या बाकी सारी चीज़ों का मैनेजमेंट क्या होता है. देखिए, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की और आपको भी पता होगा कि मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना. जब हमारे पास कोई रिसोर्स होता है जो कि अनलिमिटेड नहीं होता है, जैसे हमारे पास अगर 1000 रुपये हैं तो हम एक मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं. अगर हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है तो हम कंपेयर करते हैं प्राइसेस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. हम देखते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और उस हिसाब से हम पैसे को मैनेज करते हैं. तो मैनेजमेंट का मतलब और कुछ नहीं, मैनेजमेंट का मतलब है कि हम किसी भी रिसोर्स को मोस्ट एफिशिएंट तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं. अब मैनेजमेंट तो हर जगह है. मैनेजमेंट हमारा ट्रांसपोर्ट में भी होता है, मैनेजमेंट हमारा कंपनीज में भी होता है, मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तो हर चीज़ का मैनेजमेंट होता है. ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है डिवाइस मैनेजमेंट. अब ये होता क्या है, व्हाट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट एंड व्हाई डू वी नीड डिवाइस मैनेजमेंट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन CPU and input output devices by communicating with both. This is the simple definition of device management. See, what happens is CPU processes at a much higher speed than input output devices. CPU एक फास्ट डिवाइस होती है, इसकी स्पीड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में होती है. लेकिन जो हमारी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल्स होते हैं, उनकी स्पीड जो होती है और उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है. एक CPU जो है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कितना फास्ट टाइप कर सकते हो कीबोर्ड पे, तो आप बोलोगे सर 30 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट, या सबसे ज़्यादा कोई बहुत टाइम से टाइप कर रहा होगा वो बोलेगा सर मैं 80 वर्ड्स पर मिनट तक टाइप कर सकता हूँ. बट क्या ये किसी तरह से मैच हुआ CPU की स्पीड से? नहीं. इसीलिए हमें डिवाइस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम CPU की प्रोसेसिंग को और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बीच एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बैलेंस को इस्टेब्लिश कर सकें, जिससे कि हमारा CPU भी बेटर यूटिलाइज हो, हमारी डिवाइसेस भी better utilize हो. So we can say that device management is maintenance of balance between CPU and input output devices by communicating with both. Now how do we do this device management?
In order to optimize CPU time, the operating system employs two techniques, buffering and spooling. हमने समझा कि CPU डिवाइस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरत होती है डिवाइस मैनेजमेंट की और कैसे करते हैं. अब हम देखेंगे कि जो डिवाइस मैनेजमेंट है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम किन दो टेक्निक्स को एम्प्लॉय करके अचीव करता है. तो ये दो टेक्निक्स हैं हमारी, बफरिंग और स्पूलिंग. सो लेट्स स्टार्ट बफरिंग. Buffering is derived from word buffer. Now what is the meaning of this buffer? Buffer का मतलब है कोई टेम्पररी स्टोरेज या कोई कैपेसिटी. हम कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के थ्रू बफरिंग को समझा जाए. So here we can see a bucket and a pipe and water is coming continuously out of the pipe. So the bucket represents a buffer. अगर ये पाइप से पानी कंटिन्यूसली आता रहे और यहाँ पे बकेट ना हो तो या तो ऐसा होगा कि ये पूरा पानी वेस्ट हो जाएगा, और या फिर ऐसा होगा कि ये जो प्रोग्राम है जिसके पास बहुत सारे टास्क हैं, अदर टास्क हैं, कोड्स हैं रन करने के लिए, ये पाइप को ही हर टाइम हैंडल करे रहेगा और बाकी के टास्क नहीं कर पाएगा. तो यहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है इस बकेट की या इस बफर की, जिसमें डेटा तब तक स्टोर होता रहेगा जब तक कि एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी इसमें स्टोर ना हो जाए प्रोसेस करने लायक. और जब ये क्वांटिटी इसमें स्टोर हो जाएगी उसके बाद प्रोग्राम इस बकेट से डेटा को इंसर्ट करेगा, यूज़ करेगा और बाद में इस बकेट को वापस रख देगा कि अब इसमें पानी नहीं है, देन फिर से इसमें पानी को फिल करो. सो आई होप कि आपको एक छोटा मोटा आइडिया यहाँ पे पता चल गया होगा बफरिंग का. Now let us try to understand what is the meaning of buffering in terms of computer. Before starting, there is a term called device controller. Device controller is a device which is used to facilitate communication between devices and operating system. Basically, हमारी जितनी भी devices होती हैं, जैसे हम अपना USB डिवाइस कनेक्ट करते हैं या हम कीबोर्ड, माइक्रोफोन्स या हेडफोन्स को हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर पे, तो एक डिवाइस कंट्रोलर होता है जो कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है डिवाइस से और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफरिंग. बफरिंग इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेटा इन इनपुट बफर एंड आउटपुट बफर. देयर आर सम बफर्स वेयर द डेटा is stored before it is taken by the processor or sent to the output device by the processor. So the storage of temporary input and output data in buffers is known as buffering. Now let us try to understand how this buffering happens. एक input device होती है. input device कुछ data जो है processor के लिए इनपुट करती है या प्रोग्राम के लिए इनपुट करती है. अब वो जो डेटा होता है वो डेटा एक बफर में स्टोर हो जाता है और बफर में जब तक जितनी बफर की कैपेसिटी होती है उतनी तक स्टोर होता रहता है. इस बफर की जो कंडीशन है या स्टेटस है कि ये कितना फिल है, कितना एम्प्टी है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है. ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करता है कि बफर फिल हुआ है या नहीं हुआ है. वंस द बफर इज फिल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स अ सिग्नल टू द प्रोग्राम विच हैज़ टू प्रोसेस दिस डेटा. अगर ये बफर फिल हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को सिग्नल देता है जिससे कि ये इस डेटा को प्रोसेस करना होता है कि बफर जो है वो फिल हो गया है, नाउ यू प्रोसेस दिस डेटा. देन द कंट्रोल इज पास टू द प्रोग्राम and program processes this data until the buffer is empty, and once the buffer is empty, program again sends the signal to operating system that now the buffer is empty, now this buffer, when this buffer will fill again, then pass the control back to the program. So I hope now it is clear to you what is the meaning of buffering and what is the process of buffering. Basically, why do we do this buffering? Because a processor can have many programs which it has to run, and when a program is waiting for input output, the operating system can assign a different program to the processor.
So it is basically used to provide the efficiency or retain the efficiency of the processor. Next is spooling. Spooling is also the device management technique. In spooling, multiple devices can send data to a small peripheral device to processing. Let us try to understand line by line. Spool. Spooling is made from word spool. Spool stands for simultaneous peripheral operations on line. यानी कि simultaneous मतलब कई सारे, peripheral यानी कि आउटपुट या इनपुट के कोई ऑपरेशंस जो कि लाइन में है. अब होता ये है कि हमारे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो कि एक प्रिंटर को एक साथ कमांड दे रहे हैं कि ये प्रिंट करो, वो प्रिंट करो. ठीक है, सपोज एक प्रिंटर है और काफ़ी सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं. नाउ हमें पता है कि हम कंप्यूटर से जब प्रिंट करते हैं तो हमें सिर्फ Ctrl+P दबाना है और वहाँ से प्रिंट की कमांड चले जाती है. लेकिन डिवाइस जो है, जो प्रिंटर है, उसकी स्पीड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. वो इतनी जल्दी से प्रिंट नहीं कर सकता, उसे टाइम चाहिए. तो क्या डेटा लॉस्ट हो जाएगा? नहीं. यहीं पे ही काम आती है स्पूलिंग. स्पूलिंग में क्या होता है कि जो कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्टेड होता है उसकी हार्ड ड्राइव में ये पूरा डेटा स्टोर हो जाता है और लाइन बाय लाइन कंप्यूटर को वहाँ से प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन मिलता रहता है. So let us try to understand in Book's language device management technique when multiple simultaneous tasks are to be processed by a slow input or output device. When there are multiple tasks, multiple computers which are generating some tasks to a slow peripheral device, then spooling is done. Spooling is a device management technique. So in this example, in this picture, you can see multiple computers are connected to a single printer. Now suppose each one of these computers gives a print command for some separate documents. Now the task of computer is completed when they give the command, but we do not immediately get the printed document. Why? Because the speed of printer is slow. Now what happens is all these tasks are stored in the hard disk of the computer, which is directly connected to the printer, and from there the tasks are executed one by one by this printer. This is spooling. Now next topic is memory management. Before understanding the memory management, let us try to understand why memory management is important and why do we manage the memory. When we try to understand the meaning of management, we understand that when a resource is scarce or limited, we manage it so that we can get the best efficiency of that resource. Now in a computer, memory is a limited resource. memory जो है वो limited होती है, इसलिए उसको हमें properly manage करना चाहिए या हम manage करते हैं. और ये manage करता है कौन है? ये करता है operating system. So we can say that memory management is a function of operating system. अब memory को use कौन कौन करता है? Memory is used by CPU as well as input-output devices. Whenever CPU generates some data, it stores it into the memory device or the RAM. And whenever some input or input device inserts some data into the computer, it is stored in the RAM. Similarly, when CPU processes some data which has to be displayed on the screen or printed to the computer, it is sent to the memory. So we see that there is a single memory device and multiple devices are using that memory. And we also know that whenever a program needs to be executed, it is loaded into the main memory till the execution is completed. हमने देखा था जब हम सॉफ्टवेयर्स पढ़ रहे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रोग्राम तब तक रन नहीं होगा जब तक कि उसे मेन मेमोरी में या रैम में लोड ना किया जाए. तो हम ये देखते हैं कि मेमोरी तो लिमिटेड होती है, 4 GB 8 GB ऐसी होती है रैम हमारे पास, लेकिन उसके फंक्शंस उसको एक्सेस बहुत सारी डिवाइसेस कर रही होती हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारा
वर्क प्रेशर होता है, तो हमें उसे मैनेज करना पड़ता है जिससे कि उसकी एक एफिशिएंसी जो है वो हमें मैक्सिमम मिले. सो दिस इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजिंग ऑफ मेमोरी, एंड वी विल सी नाउ हाउ डू वी मैनेज दिस memory. The first technique of memory management is partitioning. हम partitioning कैसे करते हैं? Before we start this topic, let us try to understand using this picture. In this picture, you can see a spice box जो कि हमारे किचन में होता है. अब spice box में हमें काफ़ी सारे partitions मिलते हैं जिसमें हम अलग अलग spices को store कर देते हैं. Suppose ऐसा नहीं होता, सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर्स स्पाइस बॉक्स होता है, उसमें हम सारे स्पाइसेस को एक साथ ही रख देते, तो सब कुछ मिक्स हो जाता, हमारे लिए हम कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर पाते. या फिर ऐसा होता कि हम एक टाइम में पूरे स्पाइस बॉक्स में एक ही स्पाइस को रख पाते, तो उसमें भी हमारा जो स्पाइस बॉक्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पार्टीशनिंग. Now let us try to understand what is the meaning of partitioning in sense of computers. In computers, total memory is divided into various parts of same or different sizes. हमारे पास जो भी मेमोरी होती है, टोटल मेमोरी, उसे हम काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ये पार्ट्स जो हैं या तो सेम साइज़ के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं. वो हमारे पार्टीशनिंग टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस पार्टीशनिंग? दिस हेल्प्स टू accommodate a number of programs in the memory. Now if we divide the memory into different partitions, we can use these different partitions to accommodate different programs. अलग अलग पार्टीशन में हम अलग अलग प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं या हम accommodate कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मेमोरी में एक टाइम पे मोर देन वन प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम अकोमोडेट कर सकें. नाउ व्हेन द पार्टीशन इज फिक्स्ड, अगर पार्टीशन एक जैसा है तो हर एक प्रोग्राम को एक लिमिटेड या फिक्स्ड स्टोरेज ही मिलेगी, फिक्स्ड मेमोरी मिलेगी. लेकिन अगर पार्टीशंस जो हैं वो हमारे वेरिएबल हैं, यानी कि डिफरेंट साइजेस के हैं, तो ऐसा होगा कि किसी प्रोग्राम को तो कम मिलेगी, किसी प्रोग्राम को ज़्यादा मेमोरी मिलेगी, और वो डिसाइड होगा हमारी मेमोरी एलोकेशन टेक्निक के ऊपर, या फिर पहले कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में हम लोड करते हैं उसके ऊपर. अब अगर वेरिएबल हमारे पास पार्टीशंस जो हैं वो सेम साइज़ के हैं, तब तो ठीक है, अगर प्रोग्राम रन हुआ उसके बाद वो पार्टीशन फ्री हो जाएगा. लेकिन अगर वेरिएबल साइजेस हम यूज़ करते हैं तो जो हमारा एलोकेशन है वो डिपेंड करेगा कि पहले कौन सा प्रोग्राम आया. नाउ सपोज पहले एक ऐसा प्रोग्राम आया जिसे बहुत कम मेमोरी की ज़रूरत थी, लेकिन पहले उसे सबसे पहले ही एक बड़ा सा पार्टीशन मिल गया, तो उसने क्या किया, उस पूरे पार्टीशन को ऑक्यूपाई कर लिया. अब इसमें क्या होगा कि काफ़ी सारी स्पेस जो है वो मिसयूज़ होगी, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा. और ऐसे ही जब ऐसा मिस यूटिलाइजेशन होता है ड्यू टू दिस वेरिएबल पार्टीशंस, वी कॉल इट फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी. वो हम आगे कभी पढ़ेंगे, अभी वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है. सो आई होप आपको पार्टीशनिंग का मतलब पता चल गया होगा, और हम पार्टीशनिंग क्यों करते हैं, ताकि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को अकोमोडेट कर सकें. Next technique is, this is fragmentation. This is the example of fragmentation. If we give the partitions of same size, then there won't be any fragmentation. But if we give the variable size partitions, then there is a chance that memory can get wasted, and that condition is called fragmentation. Next technique in memory management, second technique is virtual memory. Now what is the meaning of virtual memory and how do we implement the virtual memory, we will see in this slide. Virtual memory is the technique by virtue of which programs larger than the main memory can be executed by the operating system. Sometimes कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को रन कर रहे होते हैं
जिनका साइज़ हमारे मेन मेमोरी से भी ज़्यादा होता है। अब उस समय ऐसा होता है कि हम ऐसा तब कर पाते हैं क्योंकि हर टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि टोटल कंप्लीट कोड जो है प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट कर रहा हो। एट अ टाइम ओनली सम पार्ट ऑफ द कोड इज़ एग्जीक्यूटिंग, और जो पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसी पार्ट को हम मेन मेमोरी में रखते हैं जब एग्जीक्यूशन के लिए। इससे ऐसा होता है कि हमारा पूरा प्रोग्राम भी रन हो जाता है, जो कि रैम से भी बड़ा है, मेमोरी से भी बड़ा है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा मेमोरी की कैपेसिटी है, और इसी को हम कहते हैं, इसी इम्प्लीमेंटेशन को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। द सिस्टम डिवाइड्स मेन मेमोरी इनटू सेम साइज पेजेस। जो मेन मेमोरी होती है उसे कई सारे पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। नाउ ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ केप्ट इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड एक्टिव सेट। एक्टिव सेट यानी कि वो पार्ट जिसे एग्जीक्यूट होना होता है, प्रोग्राम का वो पार्ट जिसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, सिर्फ उतने पार्ट को हम किसी पेज में एकोमोडेट कर देते हैं या कीप कर देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, जिससे कि वो रन हो सके। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज केप्ट इन सेकेंडरी स्टोरेज बट इज एसोसिएटेड विद पेजेस यूजिंग द प्रोग्राम यूजिंग ए पेज मैपिंग टेबल। अब एक मैपिंग टेबल होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ पेजेस होते हैं। अब ये पेजेस किसी प्रोग्राम को एलोकेट होते हैं। अब एक टाइम पे किसी पेज में अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि मेमोरी से भी बड़ा है, उसका हम सिर्फ एक्टिव हिस्सा या फिर जो कोड एग्जीक्यूट होना होता है, एक्टिव सेट जिसे हम कहते हैं, उतने को ही स्टोर करते हैं। लेकिन बाकी सारे प्रोग्राम की जो लोकेशन है, पूरे प्रोग्राम की जो लोकेशन है, उसे हम एक पेज से बाइंड कर देते हैं एक पेज मैपिंग टेबल के थ्रू। अब जितना पार्ट एग्जीक्यूट होना होता है उतना होता रहता है, और जैसे जैसे वो पार्ट एग्जीक्यूट होता जाता है और दूसरे पार्ट की हमें नेसेसिटी होती है, उस पार्ट को हम उस पेज में लोड करते रहते हैं और पूरा प्रोग्राम ऐसे सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता रहता है। CPU जनरेट्स ए वर्चुअल एड्रेस। अब ये मैपिंग कैसे होती है? CPU जब भी एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्राम को, तो वो एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा, और ये वर्चुअल एड्रेस क्या होगा? पेज मैपिंग टेबल के थ्रू पेज से और मेमोरी लोकेशन से कनेक्ट होगा, रेजोल्यूट होगा, और उसके ही हिसाब से, वर्चुअल एड्रेस के हिसाब से हमारा पेज टेबल एक्सेस होगा, और पेज नंबर के थ्रू हमारा मेमोरी लोकेशन जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ से डेटा हमारा लोड होगा या वहाँ स्टोर होगा। तो आई होप आपको वर्चुअल मेमोरी का आइडिया लग गया होगा, व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी एंड व्हाई डू वी यूज़ वर्चुअल मेमोरी एंड हाउ डू वी इम्प्लीमेंट द वर्चुअल मेमोरी एंड व्हाट इज़ virtual address and page mapping table. Next function is file management. File management is a function of operating system. Why is file management necessary? Whenever we store some file, then there are some attributes or properties which are associated with the file. So let us try to understand what is file management. Any data on computer is stored as a file. जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं हमें एक फ़ाइल को क्रिएट करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम सिंपली टू लिखें तो वो स्टोर हो जाएगा, हमें टू किसी प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा और उस फाइल को हमें सेव करना पड़ेगा। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज फाइल्स यूजिंग ए फाइल एलोकेशन टेबल। जब भी कोई फाइल क्रिएट होगी, एडिट होगी, कॉपी होगी, तो हर एक फाइल के साथ एक फाइल एलोकेशन टेबल क्रिएट हो जाता है जिसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, और ये फाइल एलोकेशन टेबल फाइल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन रखता है और एक्सेस राइट्स को कैरी करता है। नाउ ऑल दीज फंक्शंस ऑफ creating, editing, copying files or updating the file allocation table or giving or taking care of access rights, all these tasks comes under file management, which is the function of operating system. Let me try to show you what a file allocation table looks like. Just give me a second. So this is my desktop, and here you can see a drive. Now let me try to click this class 11 book
and here I see properties. Now you can see a file allocation table. Here you can see the permissions or rights according to who can edit, write or execute this file. You can see some general information about this file like its name, its location, last modification date and other information. So I hope now what is the meaning of file allocation table and what is the meaning of file management is clear to you. Whenever we create some file or edit or modify some file, a page allocation table, a file allocation table is created by operating system, through which operating system keep tracks of this file and manages the files. So let us go back. I hope file management is clear to you now. Next is types of operating system. Here we will see what can be the different kinds of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, और हम यही इस स्लाइड में समझेंगे. फर्स्ट इज सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इन अ सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, only one task can be executed at a time and only one user can use the system. यानी कि ऐसे सिस्टम्स जिनमें सिर्फ एक यूज़र या एक टास्क ही एग्जीक्यूट हो सकता है एक टाइम पे, उन्हें हम सिंगल यूज़र या सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल MS DOS है. अब तो MS DOS हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एम्बेडेड आता है, लेकिन स्टार्टिंग में MS DOS जो था वो एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे हम कंप्यूटर पे यूज़ करते थे. और MS DOS जो था सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द सेम डेटा और एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम. मल्टी यूज़र का सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं हमारे सर्वर्स. एक कोई मिनी कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम्स हैं जहाँ पे एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे डेटा है और बहुत सारे यूज़र अलग अलग लोकेशन से या अलग अलग टर्मिनल से उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उस डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं. तो ये एक मल्टी यूज़र सिस्टम का एग्जांपल है. यानी कि सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर्स कैन यूज द सिस्टम. Next is multi-processing system. Multi-processing system, basically any computer or any operating system which supports a multi-processor computer is known as multi-processing system. कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे एक साथ एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स रन हो रहे हैं उसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स. और ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी आज के टाइम पे हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स ही हैं. नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव सिस्टम. इंटरैक्टिव का मतलब है कोई भी ऐसा सिस्टम जिसपे एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो या एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे कि यूज़र को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए ईजी तरीका, ईजी सिस्टम प्रोवाइड हो. जैसे कि ये GUI है या वॉइस के थ्रू अगर मिल जाता है हमें. हालांकि हम इसमें सिर्फ GUI को ही या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम्स को ही काउंट कर रहे हैं. यहाँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनमें मेन्यूज़ या स्क्रीन्स पे हम इमेजेस, आइकन्स के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि एक प्रोसेसर काफ़ी सारे प्रोसेसेस को वन बाय वन प्रोसेस करता है. जैसे हमने प्रोसेसर मैनेजमेंट में राउंड रॉबिन में देखा था कि एक प्रोसेसर है वो राउंड इन ए सीक्वेंशियल मैनर काफ़ी सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए. तो हम कह सकते हैं कि राउंड रॉबिन जो था वो टाइम शेयरिंग के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है. और इसमें हमारे पास विंडो 95 से बाकी जितने भी वर्जन्स हैं विंडोज़ के वो सारे टाइम शेयरिंग में काउंट होते हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क्स पे यूज़ होता है.
डिस्ट्रीब्यूटेड नेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल होता है। बहुत सारी डिवाइसेस मिलके एक नेटवर्क बनाती हैं और उस पूरे नेटवर्क के ऊपर एक लेयर के के रूप में या एक इन ए फॉर्म ऑफ अ लेयर वी यूज अ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड distributed operating system. It is very important that you know the example of this distributed operating system. Novell's NetWare is an example of distributed operating system, and again I repeat, it is very important from exams perspective. Next is real-time operating system. In real-time operating system there is some time constraints. यानी कि हमने अगर कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी है तो कंप्यूटर को एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे कि रोबोटिक्स में है या हम मशीन्स देखते हैं, जैसे हमारे पास काफ़ी सारी मशीन्स होती हैं, या हम एक इलेक्ट्रॉनिक कार्स को अगर हम देख लें, हमने अगर कोई बटन दबाया है कि हॉर्न देने के लिए हमने एक इनपुट दिया टच स्क्रीन पे, तो अगर वो टाइम पे हॉर्न नहीं देता तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पे हमारा टाइम कॉन्स्टेंट होता है। सो दीज आर डिजाइंड फॉर हैविंग अ फिक्स डेडलाइन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की एक फिक्स डेडलाइन होती है, उससे पहले इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। रोबोटिक्स में इसका मेनली यूज़ होता है। इफ़ टास्क इज़ नॉट completed within deadline, it is called deadline overrun. सपोज अगर हमने कोई टास्क दिया, वो विदिन टाइम लिमिट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम उस कंडीशन को डेडलाइन ओवररन कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक्स, टुडेज लेक्चर। आई होप आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। एंड दिस इज द नॉलेज चेक स्लाइड वेयर वी डू सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड आई वुड सजेस्ट you to try all these questions. All these questions are important from exams perspective, and if you try to attempt these questions, then it will be a revision of the lecture.